Okay, so Shayan, I will be recording this session, and make sure you be speaking in English, na, even if it's a broken one. I've seen you have improved a lot, Alhamdulillah. We will have a reading session. For now, just Yes. let me go through one read aloud. Let's see where you are making a mistake. Don't worry, I will give you 10 minutes extra for free. So just show me where you're making mistake and read aloud. Please read Okay. one read aloud. Please talk in English, even if it's a broken one. Don't be shy. Because that will give you confidence, no? Okay. Mm. Sorry. You are sharing your screen. Show me the app on your screen. Ma'am, can I speak? Yeah, sure. अच्छा, let me put my mic on mute, no? वरना वो disturb करे. Okay. One of the great contributing factors to mental illness is the idea that we should all costs and all times be well. We suffer far more than we should because how long it can take many of until we allow ourselves in fall properly and carefully. Then, आप तो ऐसे पढ़ रहे थे जैसे आपसे कोई उधार मांग रहा हो. ऐसे नहीं पढ़ते हैं ना. तभी तो आपके मार्क्स नहीं आ रहे ना. यू आर नॉट गिविंग अटेंशन टू इट. यू आर नॉट लाइक प्रॉपरली. मतलब आप उस पे ऐसा लग रहा है कि आपको उससे कोई नफरत है. पता नहीं, कोई आपसे कोई उधार मांग रहा है, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है. देखिए, आप पैसे पे कर रहे हैं. यू आर पेइंग मनी टू मी ऑल्सो, एंड यू विल बी पेइंग 70,000 रुपीज फॉर दिस एग्जाम. एंड yes. एंड शो मी द पैराग्राफ अगेन. 1 मिनट, मैं अपना ना वो बंद कर लूँ व्हाट्सएप. यहाँ से बंद कर लूँ. पैराग्राफ दिखाएं मुझे. अच्छा, आपने कॉमा देखिए, यहाँ पे बीच में कोई भी कॉमा नहीं है. और आपका शो मी दैट जी. योर स्कोर अगेन. क्लिक ऑन स्कोर अगेन. यू आर मेकिंग द सेम मिस्टेक ना. क्लिक, या. So you have put a comma here. Take many of us, you took a break and allow again a break and ourselves to again a break, because you are talking so fast कि आपके दम घुटना शुरू हो जाता है और आप पॉजेज लेना शुरू कर दिए. आहिस्ता स्लोली पढ़े ना, किस चीज की जल्दी है. इसको दोबारा पढ़े. एक Okay. दफा मैं पढ़ती हूँ. स्क्रीन दिखाएं मुझे. अच्छा, और जब पढ़ रहे हैं ना, पहले प्रैक्टिस करें. देखिए, पहले प्रैक्टिस करें. 30 सेकेंड्स का वो आपको गैप देता है. फर्स्ट प्रैक्टिस इट लाउडली. देन जब तक वो उसका टाइमर Yes. स्टार्ट नहीं होता, Yes. अंदर दिल में पढ़े. फिर टाइमर स्टार्ट हो रहा है, फिर पढ़े. 3 दफा इसको पढ़ना पड़ता है इनफैक्ट. सो सी, one of the great contributing factors to mental illness is the idea that we should at all cost and at all time be well. We suffer far more than we should because of how long it can take many of us until we allow ourselves to fall properly and usefully ill. हालांकि मुझे खांसी है, मेरा दम भी घुट रहा है, बट फिर भी मैंने पोजेज नहीं लिए. तो आप इसको दोबारा पढ़ें या कोई दूसरा पढ़े. One of the great contributing factors. नहीं, ऐसे स्लोली Yes, sir. स्लोली. दोबारा. अच्छा, यही पढ़े दोबारा पढ़े. रीड इट One अगेन. of the great contributing factors.
फैक्टर्स है, सही क्यों नहीं पढ़े? फैक्टर्स लिखा हुआ है, Fact- एस लिखा हुआ है। One of the great contributing factors to mental illness in the idea that we should all costs and all times be well. We suffer far more than we should because how long it can take many of illness we allow ourselves is to fall properly and usefully ill. आप दोबारा पढ़े। One of the great contributing factors to mental illness in the idea that we should at all costs and all time be well. We suffer far more than we should because of how long it can take many of us until we allow ourselves to fall properly and usefully ill. ठीक है। अच्छा, अब इसको जो है वो आप दोबारा पढ़ के ना सबमिट करें, मैं म्यूट करूँ। Okay. One of the great contributing factors to mental illness in the idea that we should all costs and all time be well. We suffer far, sorry, ऐसे मिस्टेक्स होती हैं बार बार। देखिए वो मुहावरा है ना, जल्दी का काम शैतान का। जल्दी किस चीज की है? सुकून से पढ़े। ठीक, that's fine. One of the great contributing factors to mental illness is the idea that we should at all costs and all time be well. We suffer far way more than we should because how long it can take many of until we allow ourselves to fall properly and usefully ill. तो इसमें अभी ना आप एक वर्ड खा गए थे, अज। जल्दी पढ़ा ना जी, इसीलिए। जल्दी पढ़ेंगे तो होगा ऐसा। अब बेहतर हो गया ना, देखे। जी, थोड़ा सा फ्लुएंसी का मसला है, वो जल्दी में आप पढ़ रहे हो ना। देखिए अज खा गए थे, ये देखिए रेड आ रहा है ना, अज आप खा गए। थोड़ा फ्लुएंसी का मसला ये है कि, जी, हाँ कोई बात नहीं। थोड़ा सा अच्छा, इसमें रेड रेड आ रहे हैं तो फिक्र ना करें, क्योंकि एक तो आप जो भी, आप हेडफोन लगाया हुआ या ऐसे ही यूज कर रहे हैं? वैसे यूज कर रहा हूँ हेडफोन से, उससे भी कम आ रहा स्कोर। अच्छा देखिए, हेडफोन हमारा अच्छा नहीं है, दूसरा आप वैसे ही कर रहे हैं तो लैपटॉप एक को करता है। आप सेलफोन पे यूज करके देखा है? जी, सेलफोन पे ही दे गए थे टेस्ट ना। सेलफोन के दूसरा टेस्ट दिया था, पहले रीड स्क्रीन से कर रहा था लैपटॉप की, वो सेम बार ओपन करके। हाँ देखिए, आपको देखो प्रोनाउंसिएशन अच्छी हो रही है माशाल्लाह, गुड है। ठीक है, स्ट्रेस भी सही है, आपकी स्पीड भी अच्छी है। थोड़ी सी फ्लुएंसी का मसला है, क्योंकि ना आप अल्फाजों से डर रहे हैं। आपको, आप ऐसा फील करें आपको अंग्रेजी नहीं आती, किसी को भी नहीं आती, किसी की भी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है अंग्रेजी। तो जी, आपको अल्फाजों से इतना डर लग रहा है कि आप अल्फा वर्ड्स भी खा रहे हैं, आप अज खा गए थे। डरे नहीं ना आप। देखिए मैं यही सोचती हूँ, जब अगला बंदा कर सकता है ना तो मैं भी कर सकती हूँ, वो भी मेरी तरह इंसान है। तो जब अगला बंदा कर सकता है तो आप भी जी, कर सकते हो। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो इसमें और आप जो है वो प्रैक्टिस और करें। बाकी तो देखिए आपके सामने है, मैं इसमें आपको क्या ज्यादा बताऊं। आपका प्रोनाउंसिएशन का इशू भी नहीं है। जी, ऐसे आपकी आपकी स्ट्रेस लेवल भी बिल्कुल ठीक है, स्पीड भी बिल्कुल 100% ठीक है। सिर्फ फ्लुएंसी का थोड़ा इसलिए कि आप खौफ खा रहे हैं लफ्जों से, कि पता नहीं मुश्किल है तो मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं है तो क्या हुआ, कुछ भी नहीं है, किसी की भी वो अंग्रेजी अच्छी नहीं है। ठीक है, चले हम इसमें ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। जो मैं बातें नेक्स्ट टाइम भी, फिर अगर कोई इश्यूज हो तो आप मुझे भर के ये बना के ना एक सेंड कर दिया करें। जहाँ पे आपको लग रहा है कि मार्क्स नहीं आ रहे, मैं आपको करेक्शन कर दिया करूंगी, भले वो आप सेशन का वेट ना करें। जैसे एक रीड किया और मुझे जी, भेज दिया, ठीक है, मैं उसको देख लूंगी। वो शेयर कर सकते हैं ठीक ना, है। तो वो शेयर कर दीजिएगा। चलिए रीडिंग की तरफ चलते हैं ना, अभी इस पे हमने टाइम वेस्ट नहीं करना, अभी इसमें ज्यादा कुछ बताने का है नहीं। जी, तो लेट्स गो टू द रीडिंग पार्ट।
तो वो बंद कर लूँ। व्हाट्सएप बंद कर लेती हूँ, डिस्टर्ब कर रहे हैं। अच्छा, अब नाउ टेल मी, हाउ डू यू अटेम्प्ट द रीडिंग पार्ट? ठीक है। हम्म। जी हाँ। हाउ डू यू अटेम्प्ट द रीडिंग पार्ट? वो जिसमें ब्लैंक होती है बस वही एक लाइन रीड करके तो देख रहा हूँ, तो फिर उस हिसाब से अगर पैरा समझ में आ रहा हो तो फिर लग जाता है। ठीक है। वैसे ना वो भी बात ठीक है, मगर जो पहली लाइन होती है ना वो जरूर पढ़ा करें, चाहे उसमें ब्लैंक है या नहीं है। फर्स्ट लाइन हमेशा पढ़ें, ठीक। उसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। अच्छा। द ठीक। डैग, पता नहीं बंदे का नाम है, लाइब्रेरी एट यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स इन न्यूयॉर्क इज लाइब्रेरी डेजिग्नेटेड टू फैसिलिटेट द वर्क ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड। अच्छा, इस पे पूरे पैराग्राफ पे आप कितना टाइम लगाते हो सॉल्व करते हुए? 2 मिनट की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, 2 मिनट में हो जाए तो। अभी टाइमर छोड़ दे, ठीक है? अभी आपका ठीक एग्जाम है। कब तक देना है आपने? एग्जाम जनवरी लास्ट। चले, अभी सिर्फ इस चीज पे कंसंट्रेट करें कि आपके आंसर्स ठीक हो। जब आपके पास एक दफा कॉन्फिडेंस आएगा ना, फिर टाइम की टेंशन लीजिएगा। मैं खुद 10-10 मिनट लगा के करती थी पैराग्राफ। मेरा सिर्फ ये होता था कि मुझे ठीक है। चीजें समझ आ जाए। जब समझ आ जाएगी तो टाइम भी आपका कंट्रोल में आ जाएगा। दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। तो आपने ये ठीक। ड्रॉप करें इसको। नेशंस एंड डिपेंड्स मेनली ऑन, ठीक है। तो नहीं, पता नहीं डिपेंड्स ठीक है नहीं, कि आपने देखे जो भी ऑप्शंस होती है ना उनका आपको पहली बात मीनिंग पता हो तो ये तो कोई इतनी मुश्किल नहीं है। दूसरी बात, आपको पता हो कि ठीक। अगर आपने वो चूज किया है तो क्या सोच के चूज किया। सिर्फ दिल कर रहा है पे डिपेंड नहीं होगा, उसके पीछे लॉजिक होनी चाहिए, पूरा थॉट प्रोसेस। ठीक। फैसिलिटेट द यूनाइटेड स्टेट नेशंस एंड डैश मेनली ऑन द नीड्स ऑफ द यूएन सेक्रेटरी एंड डिप्लोमेटिक मिशंस। ठीक है, डिपेंड्स हो, ठीक है। अच्छा, आगे चले। Anyone with a valid United Nations headquarters grounds pass cover diplomacy। एनीवन विद अ वैलिड, हाँ क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर कवर होगा या पास होगा, दोनों में से। हाँ, अच्छा, अगर कवर होगा तो क्यों होगा, अगर पास होगा तो क्यों होगा? ये नहीं पता। देखिए, इन दोनों में से आपने चूज दो ऑप्शंस, मतलब दोनों में से कोई एक ठीक है। अच्छा, पास का मतलब जी। क्या होता है? पास का मतलब पास गुजरना नहीं होता। मतलब कहीं जाने का पास होता है, बस। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो पास ही होगा। कवर क्यों होगा? क्यों, वो कह रहा है कि अगर आपने यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग के अंदर जाना है तो आपके पास एक पास होना चाहिए। हम्म, ठीक है, आगे। including special process meeting meeting to। अब कौन से कंस्ट्रेंट्स होने हैं? क्यों क्यों आपको पास क्यों चाहिए? अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाह रही। ऐप यूनि का जो एग्जाम असल होता है ना, उसका रीडिंग पार्ट बहुत मुश्किल होता है। चारों से कंपेटिवली ना जी ज्यादा ऐसे ही। मुश्किल होता है मेरे, इसलिए उसमें कम, हम्म, सबसे कम मार्क्स है 81। तो आपको पकड़ के रखना पड़ेगा अभी। अभी अब टाइम को ना टेंशन है, अभी आपको मेक श्योर करना है कि आपके सारे आंसर्स ठीक हो। वहां पे भी आपको मेक श्योर करना ठीक है। पड़ेगा आपके सारे के सारे आंसर्स ठीक हो। बट डेफिनेटली टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। तो अभी सिर्फ सही आंसर देना सीखें, कि अगर मैं ये चूज कर रहा हूँ तो ठीक। आप कॉन्फिडेंट होना चाहिए आपके उसके बारे में। सही ठीक। आंसर हो और कॉन्फिडेंट हो। जब आपके आहिस्ता आहिस्ता आंसर्स ठीक होने शुरू होंगे, फिर ठीक। आहिस्ता आहिस्ता आप टाइम मैनेज कीजिएगा। ठीक है, अभी सिर्फ आंसर पे कॉन्सेंट्रेट। तो क्या होना चाहिए, ड्रॉप डाउन करें इसमें से, बताएं। चाहिए आपका पैराग्राफ 10 मिनट भी ले ना, कोई बात नहीं। क्या होना चाहिए? ड्यू टू सिक्योरिटी। बिल्कुल एग्जैक्टली, सिक्योरिटी क्यों? यूनाइटेड नेशनल हेडक्वार्टर में सिक्योरिटी की होगी मेरे ख्याल हाँ, से। सिक्योरिटी जाहिर सी बात है, सकती होगी ना, हर कोई अंदर नहीं जा सकता। बिल्कुल। तो जो भी आंसर चूज करेंगे ना, उसके पीछे आपकी कोई लॉजिक होनी चाहिए, दिमाग में आप बना लें। सबमिट करें, नहीं अच्छा, एक और रहता है। जनरल पब्लिक। एग्जैक्टली, वेरी गुड, कि आम आवाम के लिए। नहीं। ठीक है। तो आपको समझ आ गई है पैराग्राफ की, देखिए एक ब्लैंक आप समझ गए कि पास है। लफ्ज पास से ही आपको समझ आ गई कि सिक्योरिटी भी होगी और पब्लिक के लिए खुली भी नहीं। बस इतना ही सी बात है। पता नहीं क्यों लोगों ने टेंशन बनाया हुआ। अच्छा, एक आपका गलत वो हो गया। फोक्सी। ऊपर हो गया, ऊपर जाए, एक गलत हो गया, नीचे इनको छोड़ दे, ऊपर ही वो बता देगा, इतनी डिटेल में ना जाए, आप परेशान हो जाएंगे। ऊपर जाए।
यहाँ पे देखें, नेशन अब डिपेंड्स मेनली ऑन द नीड्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, उस पे डिपेंड नहीं करता उसका, जो वो फोकस उस पे करता है। डिपेंड्स यानी कि आप उस पे वो डिपेंड कर रहे हो। फोकस यानी कि आपका असल जो ध्यान है वो उस तरफ है। तो आपने ये जो चीज यूज की थी ना, वो बगैर सोचे समझे इस पे आंसर डाल दिया था। और मैंने वहां आपको कुछ कहा नहीं था। मैंने कहा क्योंकि मैंने कहा इसने चूज कर लिया। बाकी के आपने सोच समझ के किए थे। कोई बात नहीं, माशाल्लाह आपके 3 ठीक है ना। इट्स ओके, कोई बात नहीं। अब आपने कोशिश करनी है कि आपके सारे ठीक हो। नेक्स्ट करें। और नेक्स्ट, अच्छा अब नेक्स्ट करें। हो गया ये, हाँ नेक्स्ट करें। अच्छा आ जाए, जोर से पढ़े ना, जोर से पढ़े, पैराग्राफ को पढ़े। व्हाट किल्ड, वो रीड कर लिया था मैंने। नहीं तो जोर से पढ़ते ना, मैं तो सुनती ना। What killed off dinosaurs? The end of the Cretaceous period saw one of the most dramatic mass extinctions the Earth has ever seen. The fossil record shows that बिकॉज throughout their 160 million years, क्या होगा? इनके मीनिंग्स पता है? एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है? ऐसे नहीं सोचे। एग्जिस्टेंस हाँ ऐसे नहीं सोचे, देखिए इनका, खुद से मीनिंग पूछे इसका मतलब क्या है? एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है? ये एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है? चले छोड़े, एग्जिस्ट कंटिन्यू। का मतलब हाँ बताएं क्या है? एग्जिस्ट किसी चीज का मतलब कि रहना या हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। ठीक है, कंटिन्यूअस मीन्स खेती होना। लगातार। एक्सटेंड मीन्स, एक्सटेंड का मतलब हम्म, खत्म हो जाना। एक्सपेक्टेशंस का मतलब हम्म, उम्मीदें। तो थ्रू आउट देयर 160 years, देखिए वो कह रहा है, सो वन ऑफ द मोस्ट ड्रामेटिक मास एक्सटिंक्शन बिटवीन द फॉसल रिकॉर्ड शोज दैट थ्रू आउट देयर 160 years। तो डायनासोर्स की कुछ बात हो रही है, तो वो 160 साल तक उनकी क्या थी? कंटिन्यूस थे। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक existence। है। अच्छा आ जाए, आप आगे दूसरी लाइन पे आ जाए। पूरा नहीं पढ़े, पूरा नहीं पढ़े, छोड़ दें, इस लाइन को ओके। छोड़ दें। उस लाइन पे है जहाँ अदर ब्लैंक्स दैट है, वरना वो फेल्ड और टाइम खाएगा आपका। अच्छा अदर्स पता। जी, अदर दैट फेल्ड और अडॉप्ट एग्जिस्टिंग, फेल्ड, फेल्ड टू अडेप्ट। अडॉप्ट वेंट हाँ वेरी गुड, वेंट एक्सटेंड। कि जो अडेप्ट नहीं कर सके सिचुएशन को, वो एक्सटेंड हो गए। वेरी गुड, आगे। But then 66 million years ago, after a relatively short time, dinosaurs disappeared complete, हम्म, अच्छा कंप्लीट। completely, ठीक है। maybe. But then 66 million years ago, over a relatively short time, dinosaurs disappeared। ठीक है, completely क्यों पूछ चूज कर रहे हैं? मतलब कि मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुके हैं ना, इसलिए शायद हम्म 66 million years ago, not growing, पार्शली भी, ग्रेजुअली भी हो सकता है, स्लोली, एक्सेसिवली, कंप्लीटली। ठीक है, वो कह रहे तेरे करने में, देखते क्या होता है कंप्लीटली। सॉरी, खांसी है। अच्छा, Many other animals also died, including large मरीन टाइप, reptiles and other species ऐसे such as dash, the number of dinosaurs species was already declining. This suggests a sudden catastrophic event sealed by the fate। क्या आएगा? इनके मीनिंग्स पता है? इनको उर्दू में कन्वर्ट करके देखें। because हाउएवर, हाउएवर को उर्दू में क्या कहते हैं? वो बता या ताकि सॉरी, वो तो यट में वो तो क्या कहते हैं
अलबत्ता, हाँ अलबत्ता, ठीक है। और बिकॉज उनके आंखों, क्योंकि अगरचा, अनलेस के, अनलेस क्यों? जब तक हाँ जब तक क्यों? वो ये कह रहा है मेनी अदर एनिमल्स ऑल्सो डाइड, बाकी जानवर भी मर गए, इंक्लूडिंग प्रेटोरस, लार्ज मरीन रेप्टाइल्स एंड अदर सी क्रीचर्स सच एज, ठीक है। However, the dash number of dinosaur species was already declining. However, तो अलबत्ता बहुत से जानवर डिक्लाइन कर रहे थे। अलबत्ता तब होती है जब पहले हम ये कहें कि जी वो तो बहुत लंबा लड़का है, अलबत्ता उसको ऊंचाई से डर लगता है, तो वो दो अलग बातें हो गई। दो अलग बातें तो हो नहीं, वो कहना चाह रहा है, वो ये कह रहा है जी कि जी बहुत से जानवर जो है वो ऑलरेडी मर चुके थे, जो ये बताते हैं कि सिचुएशन बहुत खराब थी। तो वो तो एक ही बात चल रही है ना, तो अलबत्ता कैसे जी हुआ? देखिए इसलिए मैंने कहा था रीडिंग थोड़ा मुश्किल है, तो ऐसे ही आंखें बंद करके ब्लैंक चूज नहीं जी करना। सर। अच्छा, तो बिकॉज का मतलब क्या होता है? फालतू है अगर, हाँ ऑल्दो, क्योंकि हालांकि, ऑल्दो का मतलब है हालांकि चीजें, देखिए, जानवर पहले बहुत से मर रहे थे, ऑल्दो हालांकि, ठीक है, तो वो जी एक ही चीज बात चल रही। वेरी गुड, आगे। फिर नीचे वाला ब्लैंक ये रहा, द एग्जैक्ट नेचर ऑफ दिस कैटास्ट्रोफिक इवेंट इन स्टिल स्टिल टू, स्टिल डैश टू साइंटिफिक डिबेट, क्या मतलब हुआ इस जुमले का? इस जुमले का पहले मुझे मतलब पता है। द exact nature of this catastrophic event नेचर ऑफ, and still dash to scientific debate, क्या मतलब हुआ इस जुमले का? देखें, कोशिश करें, देखिए वहीं पे ना मैं आपको बता रही हूँ, वहाँ एक तो स्ट्रेस होता है, ऊपर से जो है मुश्किल आता है बड़ा। जुमले का मतलब तो बताएं, क्या कह रहा है? जुमले का मतलब भी मुश्किल है। कोई बात। द एग्जैक्ट नेचर ऑफ द जुमले का नेचर होती कैटास्ट्रोफिक इवेंट इज स्टिल टू साइंटिफिक डिबेट, उनमें से कोई एक वर्ड है जिसके मीनिंग आपको बताओ। डिबेट का मतलब क्या है? गुफ्तगू, हाँ एग्जैक्टली, गुड। तो ये कह रहा है कि ये सारे जो गुफ्तगू, टॉपिक है ये अभी भी इसमें गुफ्तगू होती है, तो गुफ्तगू के लिए स्टिल रिलेटिव टू साइंटिफिक डिबेट है, ओपन टू रिलेटिव डिबेट है, साइंटिफिक डिबेट है, एडिशनल टू साइंटिफिक डिबेट है, या फोकस्ड टू साइंटिफिक डिबेट है, क्या होना चाहिए? हाँ वेरी गुड, ओपन। फोकस नहीं। नहीं, फोकस्ड क्यों? डिबेट के लिए ओपन है, कहते हैं ना ये, फोकस्ड टू डिबेट नहीं होता, फोकस्ड जी जी टू सर, नहीं होता, फोकस्ड ऑन ठीक, होता है, ओपन टू डिबेट। जी जी आपकी वो क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, 65 है ना? जी ठीक है, आगे चले। जी सर। The catastrophe could have been और a फोन पर spread impact, volcanic eruption, or the effect of both, together with more dash changes in the Earth's climate change millions of years. बहुत ही वाक्य को बदल मोर, With more, ठीक है, changes in Earth's climate, तो more irregular changes हैं, gradual changes हैं, spiritual changes हैं, या positive changes हैं अर्थ के क्लाइमेट में? तो स्पिरिचुअल तो नहीं आएगा। इरेगुलर चेंजेस होते हाँ वेरी गुड, हैं। क्योंकि चेंजेस जाहिर सी बात है इरेगुलर ऊपर नीचे जब इंसान के भी साथ होती है तो वो बड़ा तंग हो जाता है। चलो समझ जी लेते सर। हैं, लेट्स सी कितने गलत है कितने ठीक है। चले एक, अच्छा ग्रेजुअल चेंजेस, ग्रेजुएशन। आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस जो है ऊपर, ये गलत हो गया, चले गुड है। कोई नहीं, पहले आपके पहले भी एक गलत था, अभी भी एक गलत है। अब आप कोशिश करें कि जी आपको चीजों की समझ आ रही है ना, अब वक्त को हाथ में रखते हुए करने की कोशिश करें। कि अभी कितना टाइम लगा था ऊपर से? 8 मिनट।
हाँ, 9 मिनट अपने का 7 मिनट समय। में करना है, तकरीबन 9 मिनट है। अब अपने 7 मिनट में करना है, 7 मिनट में भी करना है, पैनिक भी नहीं करना, ये ना सोचे मुझे नहीं पता, अंग्रेजी नहीं आती, कोई बात नहीं, किसी को भी नहीं आती। मैंने भी देखो गलती कर दी ना ग्रेजुएट, कोई बात नहीं। तो अब आपने ये कोशिश हम्म, करनी है कि आपने 7 मिनट में करना है, ठीक है। और आपने लफ्जों को समझ के करना है, मीनिंग देखनी है। ऐसे लोग क्या कहते हैं, अच्छा मुझे ये लग रहा है, ये नहीं, ऐसा नहीं होता। अभी एक और करें, अभी मैं माइक म्यूट रखती हूँ ना, अब आप खुद से करें और 7 मिनट में करें, नेक्स्ट करें। हाँ, There नेक्स्ट। has been a great critical approach of Shakespeare to use of Spain that मैं म्यूट पे रख रही हूँ, आप खुद से करें। बेटा आपने ये वाली ब्लैंक मिस की है, ये वाली। हाँ, स्किप नहीं करें। नहीं, स्किप नहीं कर रहा, वो नीचे वाली देख रहा था ना, वो पता नहीं क्या चल रहा है। अच्छा चले, हाँ नहीं स्किप नहीं, मगर ध्यान रखे ना, वो थोड़ी सी जल्दी हम्म, वाली जो सिस्टम है ना, वो छोड़ दें। उप्स। कोई बात, कोई बात नहीं।
क्योंकि अभी आपने, मैंने कहा था 7 मिनट ऊपर जाए, आपने कितने लगाए, 4 मिनट क्यों? आपने वो, मैंने आपको कहा था 7 मिनट में करने की कोशिश करें। तो गलतियां तो होंगी क्योंकि आपने इसमें सोचा नहीं है इतना। क्यों 4 मिनट में किया है? सोचा नहीं ना, बस जो दिल में आया, आपने कहा मुझे ये ठीक लग रहा है, तो आपने बस नहीं, किया। ऐसा नहीं है। 7 मिनट में आपने जब चूज कर लिए थे ना, एक दफा गो थ्रू कर लेते हैं। मैंने आपको 7 मिनट तो दिए थे। चलिए मुझे दूसरा। पता था, मैंने कहा कि यहाँ सिंस आया तो शायद ये यहाँ पे हैज बीन आएगा, और ड्यूरिंग शुड ड्यूरिंग द शुड हैव बीन, 17 डैश ड्रॉप डाउन करें, क्या लिखा हुआ है? ड्यूरिंग द 17 ड्रॉप डाउन करें। और एंड विद, हाँ, ड्यूरिंग द 17 डैश, अच्छा, टू ड्यूरिंग द और है ना, एंड विद। ड्यूरिंग हमारे यहाँ एंड द 18 सेंचुरी, वो ये कह रहा है 17 और 18 सेंचुरी के दरमियान। ठीक है, तो उर्दू में इसको ट्रांसलेट करते तो उसने 17 से 18 की तरफ नहीं है, इस दरमियान उसने इतना इतना काम किया। चले, अच्छा, ये शुड हैव वुड हैव बीन वाले ना बहुत आते मॉक एग्जाम में ना। जी, देखें आगे है, Shakespeare was both admired and condemned. Since then, much of the adverse criticism क्रिटिसिज्म। should have been considered relevant. देखिए, क्रिटिसिज्म शुड हैव, क्यों क्रिटिसिज्म मीन्स उसको उस पे क्रिटिसाइज करना ना, देखना, तो हैव बीन कंसिडर्ड रेलेवेंट। हैज बीन कंसिडर रेलिवेंट, तो शुड नहीं, शुड मीन्स जबरदस्ती कह रहे हैं कि उन चीजों को हमने सोचना चाहिए कि शेक्सपियर पे उस दौरान ये इतनी क्रिटिसिज्म क्यों हुई थी। अच्छा, आगे चलें। प्राइमरली क्रिटिसिज्म वाज डायरेक्टेड हार्डली, क्यों? अर्ली क्रिटिसिज्म वाज डायरेक्टेड हार्डली, सेंस ही नहीं कर रहा, हार्डली मीन्स सख्ती से। प्राइमरली एट द क्रिटिसिज्म मैंने कहा क्वेश्चन, कि हाँ, नहीं, वो ये कह रहा है कि देखिए पूरा जुमला समझे ना। अर्ली क्रिटिसिज्म वाज डायरेक्टेड प्राइमली एट क्वेश्चंस ऑफ फॉर्म, यानी कि वो जो जिस किस्म की काम करता था ना, उस पे पहली जो उसकी क्रिटिसिज्म हुई थी, वो जिस तरह से लिखता था, उसकी जो शक्ल थी, उस पे क्रिटिसिज्म थी शुरू शुरू में। वो ये कहना चाह रहे हैं। ठीक। आगे जुमले को समझे, मैंने फिर कहा था कि आपको पता होना चाहिए कि हर लफ्ज का मीनिंग क्या है और वो वहां सेट बैठ रहा है कि नहीं। यहाँ आपको खुद के ऊपर ना भी क्रिटिसिज्म से काम लेना पड़ेगा, बड़ा सख्ती से अपने ऊपर भी, क्योंकि बहुत मुश्किल है ये, बहुत मुश्किल है। आप उसको ना लाइटली नहीं ले सकते इस पार्ट को। ठीक है, आगे ठीक चले। अब आप चीजों को समझ रहे हैं ना, अब मैं एक एक वर्ड का मीनिंग तो है आपको जी। नहीं समझाऊंगी डेफिनेटली, क्योंकि आपको जी ऐसे ही। खुद से सख्ती से काम लेना है। मैंने आपको कहा था 7 मिनट ले, आप 7 टाइम लेते, आहिस्ता आहिस्ता अपना टाइम कम कर देते। अब 4 मिनट में करके आपको फायदा तो कोई भी नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, अब दूसरे पार्ट पे आते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि आपका वो दूसरे उस पे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ जाए, मैं सबको बताती हूँ, आपने अटेम्प्ट कैसे करना है और फिर आपने प्रैक्टिस करनी है। फिर रीड अलाउड का ये जो आ रहा है ना, ठीक है। मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल सेकेंड ऑप्शन, अच्छा इस पे आए, जो रीडिंग का सेकेंड वाला है, हाँ ये वाला। ठीक है। लोग कहते हैं कि जी रीडिंग में आपने इन इन चीजों पे ध्यान देना, इन इन चीजों पे ध्यान नहीं देना। मैं ये कहती हूँ कि जो जो आपसे हो सकता है आप करें, अपने मार्क्स ना इनसे छीन के लें। अब इनको अटेम्प्ट कैसे करना है, अनप्रैक्टिस में को, ठीक है कोई बात नहीं, एक उठाएं, हाँ इसको सेलेक्ट करें। आपके डिजायर्ड स्कोर क्या है? 65 है ना? 65। ठीक है, जी। तो इन पे टाइम वेस्ट नहीं करें। अगर अगर आप 79 करने आपके डिजायर होता, तो मैं आपको जरूर कहती कि इन पे 1-2 मिनट लगाएं, इनको देखें, इन पे काम करें। ऐसा ना करें। अगर इसमें मैं क्या करती हूँ, नीचे आए, नीचे आए, अब मैं जो ये कहूँगी आप इस पे टाइम, इसमें एक ये ट्रिक होती है कि जी या तो आप उनको पढ़ें, अच्छा, इसमें सबसे पहले ट्रिक ये होती है कि जो इनमें सबसे बड़ा जुमला है वो ज्यादातर आंसर होता है, जो सबसे लंबा जुमला है, इनमें से लंबा जुमला सी है, और जी भी ऑलमोस्ट सेम है, जी। ठीक है? एक ये ट्रिक होती है कि जो सबसे लंबा वाला है, द accrual of very minor differences between the calendar used in the Britain and real solar events, ठीक है? अच्छा,
क्योंकि 65 है तो मैं नहीं कहूंगी उनको पढ़े। 79 होता तो मैं आपको कहती कि एक दो मिनट जरूर लगा के कोशिश करें, क्योंकि हमने मार्क्स छीनने, तो वो है नहीं। तो ठीक है। एक ट्रिक ये होती है कि जो सबसे लंबा वाला जुमला है वो, आप ये मल्टीपल है, आप एक से ज्यादा चूज कर सकते हो, बट मैं हमेशा यही कहती हूँ कोई एक चूज करें और आगे चले जाए। कोई एक चूज वो करें जो सबसे लंबा जी, वाला। ठीक। ठीक है। अगर सारे एक जैसे एक ही ठीक। साइज के हैं तो एक दफा उनको पढ़ लें और आपके दिमाग में जो आपको मुनासिब लग रहा है वो चूज करके आगे निकल जाए। ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, इसको सबमिट करें, मुझे लग रहा है सही आंसर होगा। वो एक सी। सही है ना। वो ये ट्रिक काम करती है, जो सबसे लंबा वाला होता है वो यूजुअली आंसर होता है। अगर ठीक है। सारे जुमले एक साइज के हैं तो आप एक दफा उनको पढ़ लें, आपका दिमाग को जो लगता है कि मुझे ये वाला ठीक लग रहा है उसको चूज कर लें, मगर कोई एक आंसर, हालांकि मल्टीपल है मगर एक आंसर चूज करें, क्योंकि आपको 65 चाहिए ज्यादा। नेक्स्ट वाले पे ठीक जाए। है। नेक्स्ट वाले पे आप खुद चूज करें देखें आप क्या करते हैं। नेक्स्ट पे जाए। नहीं, ये वाला ना, साथ में जो नेक्स्ट लिखा हुआ है। हाँ, आगे नीचे है। ठीक है। अच्छा, अब ये तो सारे एक जैसे एक ही लेंथ के ऑलमोस्ट। जी। मैं ये कहूंगी एक दफा पढ़ लें, क्योंकि ये दोनों डी और ई दोनों एक ही लेंथ के हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज द पैसेज टेल अस अबाउट, तो पैसेज ना पढ़े, सिर्फ आंसर्स को पढ़े। तो ये लग रहा है हाँ जी। लेट्स सी। उप्स। ये वाला नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए खैर है, कोई बात नहीं। क्योंकि वो उसके लिए ना जरूरी नहीं है कि आपके पास हर इन्फॉर्मेशन हो। जब आप भी नॉर्मल लाइफ में डिसीजन लेते हो तो जरूरी नहीं होता आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड हो। इसलिए मैंने कहा था कि देखिए सारे एक जैसे एक ही लेंथ के लग रहे हैं, तो आप इनमें से फिर आप पढ़ लो, क्योंकि अच्छा खासा कोई डिफरेंस इनके लेंथ में नहीं था। ये नहीं कि कंपेरेटिवली ये वाले लंबे थे, इतना ज्यादा कोई डिफरेंस, एक दो वर्ड, एक ही वर्ड का डिफरेंस था। ठीक है। तो इसलिए मैंने जी, कहा था जी। कि आप इनमें से पढ़ लें और आपको जो मुनासिब आपके दिमाग को सूटेबल लग रहा है वो वाला चूज करें। द ब्रेन इज डिजाइन टू इनेबल क्विक डिसीजन मेकिंग। ठीक है। तो दिमाग ही है जो डिसीजन मेकिंग में काम आता है। मगर इनमें जो है वो जुमला लंबा है, बहुत लंबा है। मतलब अच्छे खासे बाकी जुमलों में आपको अगर याद हो पहला जुमला तो वो दूसरों से काफी लंबा था। ठीक है। अगर सेम लेंथ के जी, तो ऐसे ही है। हाँ, बिल्कुल। सेम लेंथ के तो आप ऑप्शंस पढ़ लें, उनमें से आपके दिमाग को जो मुनासिब ऑप्शन लग रहा है वो चूज करें। कोई बात नहीं। चले, इसमें भी आप ठीक है। ट्रिक करते रहिएगा। फिर आपको समझ आ जाएगा। आप जी, ठीक है। रीऑर्डर पे चलते हैं। परेशान ना होंगे अगर इनमें इनका इतना 1% मार्क ही होता है, मल्टीपल चॉइस मल्टीपल के, तो उसमें आंसर गलत भी हो रहे हैं तो इसमें ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। अच्छा, अब रीऑर्डर जो है ये बड़ा सर का दर्द है। ये मार्क्स भी खाता है और जी। इसके मार्क्स भी अच्छे खासे हैं। 6 मार्क्स इसके होते हैं। और ये मुश्किल, अच्छा इसमें दो बिल्कुल। तरीके हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के। मैं आपको बता रही हूँ, गौर से सुनिएगा। एक तरीका ये होता है ठीक है। कि जी पेयरिंग करें, जैसे 1 2 3 4 5 जुमले दिए हुए हैं, ठीक है। रीऑर्डर में क्या हाँ होता जी। है, जुमले आगे पीछे हुए होते हैं, आपने एक सेंस में जुमले बनाने होते हैं। जैसे हम बात करते हैं तो हम पहले एक बात करते हैं, फिर दूसरी बात, फिर तीसरी। उसमें सबसे पहले ट्रिक ये होती है कि आप वो जुमला ढूंढें जो आपको लगता है कि जिस इंट्रोडक्टरी होना चाहिए, ये स्टार्टिंग होना चाहिए, ये किसी बात के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हो। ठीक है। सुन ले। उसके बाद वो आपने हाँ जी। चूज कर लिया, वो आपने सबसे पहले रख लिया। दूसरा वो जुमला, अब उसमें